Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive series of videos on topic of probability for students of Class 10 studying under the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. This initiative aims to simplify and enhance students' understanding of this crucial mathematical concept. The probability video series provides a detailed explanation of concepts such as experiments, outcomes, events, sample spaces, and probability calculations through clear examples and step-by-step explanations. Students can grasp complex concepts easily and develop a strong foundation in probability. These videos also cover important topics like theoretical probability, experimental probability, independent and dependent events, and the concept of permutations and combinations. By utilizing intuitive visual aids and real-life examples, the probability videos ensure students can apply these concepts in practical scenarios. Additionally, the series includes numerous practice exercises and solved examples that can help students assess their understanding and improve their problem-solving skills. Through this comprehensive learning experience, students can gain confidence in tackling probability-related questions. Ignited Minds Tutorials probability videos are designed to cater to the diverse learning styles of students. With its user-friendly interface and engaging content, this series is a valuable resource for students preparing for their Class 10 board exams. So, whether you are a CBSE or Maharashtra State Board student, Ignited Minds Tutorials probability videos are an effective tool to strengthen your understanding of this essential mathematical concept and score well in your exams. ओके बच्चा बाड़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन इसमें क्या कहते हैं दोनों भी अपना प्रोबेबिलिटी की चैप्टर्स में, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब 2023 के सवाल से ताज़ा स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम इज। 20 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 5 स्विम नहीं कर सकते। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, in a group of 20 people 5 can't swim. If one person is selected then the probability that he she can swim, तो कितने लोग swim कर सकते हैं 15, ठीक है। तो probability कितनी हो जाएगी तो यहाँ पे probability people can swim is equal to 15 upon 20। so ये हो गया 5 3 15 5 4 20, तो that will be 3/4, ठीक है। ये आपका 2023 का CBSE का सवाल है। probability of happening of an event is denoted by P and probability of not happening of the event is denoted by Q, ठीक है। ओके रिलेशन बिटवीन P and Q क्या हो जाएगा बोलो। probability of happening of an event, ये समझ लो कोई इवेंट है, लेट्स से probability of happening of an event ये है आपका PE, ठीक है, that is denoted by P and probability of not happening of an event that is denoted by Q। तो बताइए भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, happening of an event plus not happening of an event, happening of an event plus not happening of an event ये होता है 1, that is P plus Q is equal to 1, ठीक है। P plus Q is equal to 1, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 60,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? तो देखो भाई साहब 6,000 टिकट्स, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो आपका फेवरेबल इवेंट्स क्या है, ठीक है, 0.08 आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज हाउ मच 0.08, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो टिकट्स बॉट बाय हर, टिकट्स ब्रॉट बाय द गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यही होगा ना प्रोबेबिलिटी भाई साहब, उसने जितने टिकट्स खरीदे होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0.08 टिकट्स बॉट बाय द गर्ल, नहीं मालूम है ये, ठीक है। तो लेट्स से ये T है, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यहाँ पे कितने हैं 6,000। सो देयरफॉर T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.08 इंटू 6,000, सो दैट विल बी हाउ मच 8 6 48 और ये 3 0 हो गए, ये 3 0 हो गए जिसमें से ये 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 480। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा आपका 480।
2 dices are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to 3. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंस मिले आपको कितना? 3. 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, तो 2 डाइसेस अगर आप एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखो 1 2 1 3, ये आपके सारे 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर. सो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 1, फिर है आपका 1 2, ऐसा करते करते 1 6, फिर आपका 2 1, ऐसा करते करते भाई साहब कहाँ तक? 2 6 तक, फिर आपका भाई साहब 6 1, ऐसा करते करते कहाँ तक? 6 6 तक. ठीक है, 2 डाइसेस को हमने थ्रो किया है. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिफरेंस ऑन द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3. ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इज इक्वल टू 3. तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स अपर फेसेस में 3 कब होगा बताइए? जैसे इस लाइन में कौन सा हो जाएगा? 4 और 1. ठीक है, इस लाइन में कौन कौन सा हो जाएगा? देखो 1 and 4 है कि नहीं? और बोलो भाई साहब. और नहीं, इसमें इस लाइन में और कोई है? 1 और 4 के सिवा और तो कोई है नहीं भाई साहब जिसमें 3 का डिफरेंस आए. ठीक है, एक में आया 1, दूसरे में आया 4, तो आपका भाई साहब कितने का डिफरेंस हो गया? 3 का. ठीक है, इस लाइन में बताओ 2 और 5. ठीक है, और तो कोई है नहीं भाई साहब. इस लाइन में बताओ 3 और 6. ठीक है, इस लाइन में बताओ 4 और 2, नहीं 4 और 1. ठीक है, इस लाइन में बताओ 6 and 3, 5 सॉरी 5 वाला लाइन नहीं गया ना, 5 and 2 है ना, यही तो होंगे भाई साहब. ठीक है, दीज आर ऑल दी पॉसिबिलिटीज. 1 2 3 4 5 6, तो आपका कितना हो गया बोलो? टोटल 6, और टोटल आपका कितना है भाई साहब? 36. तो 1/6 की पॉसिबिलिटी हो गई. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब? 1/6. सब 2023 के सवाल हैं आपके CBSE के. ठीक है, ओके. थोड़ा बहुत अपन ले लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सवाल. ये आपके भाई साहब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सवाल है क्लास 10 के आपके प्रोबेबिलिटी पे. इफ अ डाई इज रोल्ड, मार्च 2019 का क्वेश्चन है. इफ अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2? नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2, तो क्या क्या हो जाएगा बोलो? आपके नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अपर फेस पे नंबर लेस देन 2 कौन सा है? एक ही नंबर है भाई साहब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी हाउ मच? 1/6. कार्डिनल नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 1/5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भाई साहब, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/5. कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे? 2. और कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2. सो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10. ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे? 10. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? कौन सा नंबर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको मालूम है, लेस देन इक्वल टू 1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ठीक है, इसके बियॉन्ड जो भी होगा उसको अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो ये 1.5 सीधा हिसाब बन रहा है, ये आपका 1 से ज़्यादा हो रहा है, सो इट कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. अ डाई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो 2020 में आया हुआ है. अ डाई इज रोल्ड, देन राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल ऑप्शंस. ठीक है, नंबर एंड नंबर ऑफ सैंपल ऑप्शंस. तो आपका पास सैंपल ऑप्शन क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6. ये हो गया आपका सैंपल स्पेस. कार्डिनल नंबर ऑफ S कितना हो जाएगा? 6. सिंपल. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके. CBSE के क्वेश्चन देखते हैं 2023 के. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an ace. Ace card ना हो. ठीक है, तो आपका भाई साहब ace card कितने हो जाए? 2023 का सवाल है, देखो तो 52 कार्ड्स हैं, ये हो गया आपका कार्डिनल नंबर ऑफ S है ना. नॉट एन एस. एस कार्ड्स कितने हैं टोटल? एस कार्ड्स कितने हैं आपके?
4, हर एक स्पीशीज एक एक, तो विदाउट एस कार्ड, नॉट एन एस कार्ड कितने हो जाएंगे, नॉट एन एस कार्ड कितने हो जाएंगे बोलो, 52 - 4, दैट्स हाउ मच, 48. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 48/52, 4 12 4 13, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 12/30. ठीक है, क्लियर है. सो ये हो गया आपका 12/13. Directions in the question number 6, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct option out of the following. The probability that a leap year has 53 Sundays is 2/7. क्या ये सही है, एक लीप ईयर में 53 संडेज हो, अपन ये सवाल कर चुके हैं, तो क्या ये सही है, इज इट करेक्ट. ठीक है, तो लीप ईयर में अगर 53 संडेज की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2/7. द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7, तो ये रॉन्ग है. ठीक है, तो ये रीजन आपका रॉन्ग है, तो ये आपका करेक्ट है. असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी. ठीक है, ओके. A bag contains 5 red balls and n green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times that of red ball, then the value of n is. मैंने पहले ही बोला था भाई साहब 3-3 हो जाओ, तुम लोगों को क्या थोड़ा सा तो कभी एडजस्ट कर लिया करो यार, या तो यहाँ बैठ जाइए, ज्योति थोड़ा शिफ्ट हो जाइए. A bag contains 5 red balls, ठीक है, तो आपका 5 red balls है, ठीक है, and n green balls, ठीक है. If the probability of drawing a green ball is 3 times that of the red ball, then the value of n is. ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये भाई साहब कितनी देर तक एंट्री होती रहेगी लोगों की, हाँ. A bag contains, टोटल कितना हो जाएगा बोलो, टोटल विल बी हाउ मच, n green balls plus 5 red balls, ये हो गया टोटल. ठीक है, ओके. A bag contains 5 red balls and n green balls. If the probability of drawing a green ball, तो what is the probability of drawing a green ball, बोलो भाई साहब, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, n/n + 5. क्या ये समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल विल बी n/n + 5. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 times दैट ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, ये कितना हो जाएगा बोलो, 5/n + 5. ठीक है, so if the probability of drawing a green ball, that is probability of drawing a green ball is 3 times that of the red ball, probability of drawing a red ball, probability of drawing a green ball is 3 times the probability of drawing a red ball. ये इक्वेशन हो गया भाई साहब, तो probability of green ball कितना हो गया, n/n + 5 is equal to 3 × 5/n + 5. ठीक है, so यहाँ पे कितना हो गया देखो, n/n + 5 is equal to 15/n + 5. क्या इन दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन कैंसिल द बोथ दिस, तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया, 15, n की वैल्यू आ गई भाई साहब 15. ठीक है, क्लियर है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो आपके भाई साहब आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 हेड आया, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड और दोनों भी टेल, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 है ना, दिस विल बी 1/4. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है, 2 नंबर से बना हुआ नंबर है ना. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई क्या क्या है आपके भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं, 4 and 6, 2 2s 4 होता है और 2 3s 6 होता है, तो कॉम्पोजिट नंबर ये हो गया. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6, दैट इज 1/3. चाहिए, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, 1/3. द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडेज, 53 वेडनेसडेज हो, तो इसमें कैसा हो जाएगा पॉसिबिलिटी, देखो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 वेडनेसडेज तो होंगे ही, तो रिमेनिंग जो एक दिन बचा है वो आपका संडे से लेकर भाई साहब सैटरडे कोई भी हो सकता है, तो इसमें से दूसरा वाला हो वेडनेसडे, इसका पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/7. ठीक है, 1/7. सो दिस विल बी 1/7. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला जो सवाल है, काफ़ी घूम घूम के आपको सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें. ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल. ठीक है, तो MANGO, इसमें वॉवल कौन कौन से हैं भाई साहब, 1 2, तो ये हो गया 2/1 2 3 4 5, 2/5. ठीक है,
So this will be the probability. Are we clear on this one? ठीक है? Okay. Two coins are tossed simultaneously. Write the sample space. Sample space S क्या क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब? Two coins are tossed simultaneously. स्टेट बोर्ड का सवाल है 2022 का, ठीक है? ओके, क्या क्या हो जाएगा बोलो? हेड, हेड, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? हेड, टेल, देन वी हैव टेल, हेड, एंड देन वी हैव टेल एंड टेल. क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द सैंपल स्पेस. क्लियर? ओके. टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, देखो, ठीक है? टू कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ राइटिंग द सैंपल स्पेस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द इवेंट. इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट वन हेड, इवेंट बी टू गेट नो हेड. ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस में बोलो? पहले वाले बॉक्स में क्या क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, हेड और हेड है कि नहीं? हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, और तीसरे वाले टेल एंड टेल. ठीक है? इवेंट ए है आपका क्या? एटलीस्ट गेटिंग वन हेड. तो हेड, हेड और क्या हो जाएगा बोलो? एटलीस्ट वन हेड. तो क्या क्या हो जाएगा? हेड टेल और टेल हेड है कि नहीं? तो हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड. ठीक है? दोनों टेल वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा. ठीक है? इवेंट बी गेटिंग नो हेड. तो ये क्या हो जाएगा बोलो? टेल टेल. ठीक है? दिस इज इवेंट बी. अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो कितना होता था? तो P ऑफ B वुड हैव बीन हाउ मच? 1/4. अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो वो कितना होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A वुड हैव बीन 3/4. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? ठीक है? ओके. There are 9 tickets in a box, each bearing one of the numbers 1 to 9. एक बॉक्स में भाई साहब 9 टिकट्स हैं, each bearing 1 to 9. One ticket is drawn at random from the box. Ticket shows an even number. तो आपका भाई साहब इस बॉक्स में सैंपल स्पेस में क्या क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 tickets in a box, each bearing numbers from 1 to 9. One ticket is drawn at random from the box. Event A, ticket shows an even number. क्या हो जाएगा बोलो? even number. Even number 2 4 6 8. ठीक है? क्लियर है? 2 4 6 8 ये आपके इवन नंबर्स हो गए. तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? देखो 1 से लेकर 9 तक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 9. इवन नंबर का केस क्या हो जाएगा बोलो? 2 6 एंड 8. कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो? 3. अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा होता, हाँ 4. ठीक है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा होता तो कितना होता था बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. दैट्स हाउ मच पीपल? हम 4 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 9. ठीक है? क्लियर है? ओके. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सीबीएसई का 2021 का. ध्यान दीजिए, कल आपका इस पे टेस्ट होगा दोनों बोर्ड्स का. ठीक है? प्रोबेबिलिटी पे. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज कंपल्सरी. ओके. ड्यूरिंग समर ब्रेक हरीश वांटेड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स but it was too hot outside, so he decided to play some indoor game with his friends. He collects 20 identical cards and writes the numbers 1 to 20 on them, one number on one card. He puts them in a box. He and his friends make a bet for the chances of drawing various cards out of the box. Each was given a chance to tell the probability of picking up one card out of the box. Based on the above answer the following questions. ठीक है? The probability that the number on the card drawn is an odd prime number. तो पहली बात तो भाई साहब आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? बोला जल्दी से बोला. सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 से लेकर भाई साहब 20 तक. ये कार्ड्स हैं आपके. ठीक है? ओके. प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर को ऑड प्राइम नंबर. लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन ऑड प्राइम नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर. लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन ऑड प्राइम नंबर. ठीक है? ए ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? 2 3 5 7. ऑड प्राइम नंबर है. देखो पहली बात तो ऑड होना, तो ये ऑड नहीं होगा ना भाई साहब, ये इवन हो जाएगा ना. 2 आपका जो है प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है. ठीक है? ऑड प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 20 तक. 3 होगा. ऑड मतलब समझ में आता है ना भाई साहब? क्या ऑड मतलब होता है भाई साहब? इवन, ऑड और प्राइम.
जो सबके टेबल में जाता है वो प्राइम है, तो प्राइम मतलब जो किसी के टेबल में ना जाता हो। तो 3 5, ठीक है, 3 5 7 और बोलो भाई साहब 9, कौन बोला 9? सर बोल लो अपना, ठीक है, 11, फिर 13 17 19, ठीक है, ओके। सो द प्रोबेबिलिटी, तो आपका भाई साहब इसका प्रोबेबिलिटी भाई साहब कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच हम पीपल, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन भाई साहब 20, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या हो जाएगा बोलो? आपके कॉम्पोजिट नंबर क्या क्या है? कॉम्पोजिट नंबर क्या क्या है? कहाँ पे? 1 से 20 तक कॉम्पोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कॉम्पोजिट नंबर, ड्रॉइंग अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो बी में क्या क्या आ जाएगा बोलो? ओए कहाँ पे? जल्दी जल्दी। 2 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, बट 2 पहला प्राइम नंबर है भाई साहब। 2 और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो प्राइम नंबर है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है और पहला प्राइम नंबर है। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर बोला है, हाँ, ओके। चलिए भाई साहब 4 के पहले कुछ नहीं है, श्योर। चलिए भाई साहब फिर 6 8, ओके, 10 9 चबा गई भाई साहब, क्यों? 9 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 3 इंटू 3 9, फिर 10, फिर 11 12, ओके, 14, फिर 16, क्यों? 15 नहीं आएगा, 12 13 नहीं आएगा, प्राइम नंबर है। 14 आएगा, 15 भी आएगा ना भाई साहब, कॉम्पोजिट नंबर 3 5 15, फिर 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, और 20, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये हो गया 11 अपॉन भाई साहब टोटल कितना है? 20। सो इट विल बी 11 अपॉन 20, ठीक है। दिस वुड बी दी आंसर, ठीक है, क्लियर है? ओके, the probability that the number on the card drawn is a multiple of 3 6 and 9, 3 6 और 9 तीनों का भी मल्टीपल हो, तो कौन सा भाई साहब इसमें हो जाएगा? 3 6 and 9 तीनों का भी मल्टीपल हो। ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी आए, 6 के टेबल में भी आए और 9 के टेबल में भी आए। 3 6 और 24 भाई साहब 20 पार कर गई आप। यहाँ पे क्या है? 1 to 20 है, नहीं होगा। 18 इज द ओनली नंबर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें करना क्या है? आपको एलसीएम निकालना है। 3 6 और 9 का एलसीएम आपको 18 ही आएगा, और 18 ही इकलौता नंबर है जो 1 से लेकर 20 तक में आ रहा है, ठीक है। सो लेट डी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर विच is a multiple of 3 6 and 9। सो D कितना हो जाएगा बोलो? एक ही इवेंट है आपका 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 18, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ D विल बी 1 अपॉन 18। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम किधर गया? नहीं सॉरी 20, सॉरी आई एम सो सॉरी। आपका टोटल है कितना? 20 ना, 1 अपॉन 20, ठीक है। The probability that the number on the card drawn is a multiple of 3 and 7। 3 और 7 का मल्टीपल अगर आपको चाहिए तो पहले तो 3 और 7 का एलसीएम निकाल लो, और 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम आपका 21 है। तो पहला कॉमन मल्टीपल 3 और 7 के बीच में है 21, जो 20 को क्रॉस कर रहा है। तो आपके पास भाई साहब लिमिट ही है 20 तक का, ठीक है। सो आप देखोगे द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7 is 21, which is greater than 20। Therefore, if let's say यहाँ पे E लिख लेते हैं ना, D तक तो पहुँच गए। If E is the event
of drawing a number which is a multiple of 3 and 7 then probability of E will be equal to 0, क्योंकि E खुद ही आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये वाला हो गया आपका 0. If all cards having odd numbers written on them are removed from the box, then one card is drawn from the remaining cards. The probability of getting a card having a prime number. All cards, सारे cards को हमने remove कर दिया है having odd numbers. तो अभी कितने cards बचेंगे आपके पास? 20 में कितने odd numbers होंगे? 10 odd numbers होंगे. ओके, तो remaining cards आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब? आपके remaining cards हो जाएंगे कितने? Remaining, what is your remaining cards? Remaining cards will be, कब तक चलता रहेगा? रिमेनिंग कार्ड्स कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 दैट इज 10. ठीक है, क्लियर है? अभी इन 10 कार्ड्स में हैविंग अ प्राइम नंबर, तो ऑड नंबर्स को सबने आपने रिमूव कर दिया. अभी सब इवन नंबर्स बचे हैं. इवन नंबर में इकलौता इवन नंबर जो प्राइम होता है वो है 2. ठीक है, सो इफ हम यहां पे लिखते हैं इफ f इज द इवेंट ऑफ पिकिंग एन इवन प्राइम नंबर. ठीक है, तो आपका f कितना हो जाएगा? दैट इज 2. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितनी हो जाएगी भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ h हो जाएगी 1/20. ठीक है, सो दैट विल बी 1/20. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके. चलिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 2020 का आया हुआ सवाल है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. आप लोगों को हेलो वेट पहले आप लोगों को सबमिट करना है आज. ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड. ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है. रेड कार्ड कितने होंगे? 26. ओके, चलिए, तो रेड कार्ड अगर आपके 26, सपोज S इज द सैंपल स्पेस, तो कार्डिनल नंबर ऑफ S कितना हो गया? 52. इवेंट कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड. टोटल रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे भाई साहब? आपके 13 डायमंड के कार्ड हैं और 13 हार्ट के कार्ड्स हैं. तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा? 13 + 13 दैट इज 26. प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी? पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ A अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S. ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा. यहाँ पे भाई साहब 26 मत लिख देना. ठीक है, तो ये 26/52 विच इज हाउ मच? 1/2. 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2. ठीक है, क्लियर है? सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भाई साहब किस तरह से तो लोगों को पास कराओ, है ना. और क्या है, ये मेरे को पास कराओ का सिस्टम लगता है ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सबसे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. क्या वो भी आलतू फालतू वाला फिल इन द ब्लैंक्स है? तो तुम सवाल में कहाँ इसको यूज कर रहे हो? इससे अच्छा ABCD लिखवा लो भाई साहब. If one die is rolled, then to find the probability of an event to get prime number on upper face, complete the following activity. Okay, एक die is rolled, so आपका sample space क्या हो जाएगा बोलो? What will be the sample space? यहाँ पे क्या क्या भरोगे भाई साहब? यहाँ पे भरोगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ फेस कितना हो गया भाई साहब? आपका 6. इवेंट ए प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. ठीक है, प्राइम नंबर क्या क्या है भाई साहब आपके? बोला इस बॉक्स में क्या क्या भरेंगे? देखो 2 3 5 2 3 5. ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना हो गया? 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ A अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S. ठीक है, देखो दो तरीके हैं एक ही चीज को लिखने के. CBSE वाले लिखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? दिस वन विल बी 3/6. सो दिस वन विल बी 3/6 दैट इज 1/2. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलो भाई साहब इन सवालों को जरा एक एक करके अटेम्प्ट कीजिए भाई साहब. 2023 20 सब ये आए हुए सवाल हैं. चलिए फटाफट हो गया. बहुत बढ़िया, बहुत